Students, we'll discuss today about the ideal and non-ideal solution. In the previous video, we discussed the Roots law. The solution which obey the Roots law is known as ideal solution. On the other hand, the solution which does not obey the Roots law is known as non-ideal solution. The basic difference between the ideal and the non-ideal solution is this one. Ideal solution always obey all the ideal solution obey Roots law at all the concentrations, but non-ideal solution does not obey the Roots law. This is the basic difference between ideal and non-ideal solution. So what are the characteristics of ideal solution? First of all, ideal solution must obey Raoult's law at all the concentrations. First point. Second one, delta H mixing must be equal to 0. What does it mean? When we add A and B, solvent and solute together, there should not be any change in heat. Neither it should be absorbed nor it should be evolved. यानी जब हम सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाएंगे, मिक्स करेंगे सॉल्यूशन बनाने के लिए, तो हीट ना तो उसमें इवॉल्व होनी चाहिए और ना ही एब्जॉर्ब होनी चाहिए, तब वो सॉल्यूशन आइडियल सॉल्यूशन बनेगा. थर्ड, डेल्टा वी मिक्सिंग मस्ट ऑलवेज इक्वल टू बी 0. यानी दोनों के वॉल्यूम में अगर मैं 50 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट ऐड करता हूं इन 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ solvent, the total volume of the solution must be 150 centimeter cube, that is 50 plus 100. If it is so, it must be an ideal solution. There is no change in volume. 50 plus 100 comes out to be 150. And fourth one, which is more important characteristics of the ideal solution, the intermolecular force of attraction. A and A, B and B, A and B. These are the three force of attractions during the preparation of a solution. When it was pure solvent, the force of attraction between A and A must be equal to the force of attraction between B and B, that is solute and solute, and it must be equal to A and B, that is solute and solvent. If it happens so, the solution must be ideal. These are the four characteristics of ideal solution. Take it again. A solution must obey the Roots law at all the concentration. Delta H mixing must be equal to 0. Delta V mixing must be equal to 0. And the force of attraction between solvent and solvent must be equal to the solute and solute particles, and it must be equal to the intermolecular force of attraction between solute and solvent. ये तभी हो सकता है जब उनके मोलिकुलर मास में बहुत ज़्यादा अंतर ना हो. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नेचर में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, उनकी पोलरिटी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, उनका मोलिकुलर मास भी सिमिलर होना चाहिए. सेम तो हो नहीं सकता दो कंपोनेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. तो लिटरली अगर मैं ये कहूँ कि इस दुनिया में कोई भी 100% आइडियल सॉल्यूशन नहीं है तो गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टेक्निकली पॉसिबल नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तीनों का बिल्कुल बराबर हो. इसलिए 100% आइडियल सॉल्यूशन कोई भी नहीं है इस दुनिया में.
हाँ, कुछ सॉल्यूशन ऐसे बनाए जा सकते हैं जो लो कंसंट्रेशन पर डाइल्यूट सॉल्यूशन की कंडीशन में वो नियर टू द आइडियल बिहेवियर शो कर सकते हैं। वो कौन कौन से हो सकते हैं? फॉर एग्जाम्पल बेंजीन एंड टोलुइन, इथाइल क्लोराइड एंड इथाइल ब्रोमाइड, एनहेक्सेन एंड एनहेप्टेन। ये तीनों सॉल्यूशन बनाते वक्त मेरे दिमाग में एक बात थी कि दोनों में बहुत ज़्यादा सोल्यूट और सॉल्वेंट में बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूलर मास में, नेचर में अंतर नहीं होना चाहिए। ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, ये भी एक हाइड्रोकार्बन है, केवल एक कार्बन और दो हाइड्रोजन का ही अंतर है, CH2। बेंजीन पे से एक हाइड्रोजन हटाकर CH3 लगाया है। इसी तरह इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, एनहेक्सेन, एनहेप्टेन। तो आप देखेंगे कि मैंने सॉल्यूशन बनाते वक्त कोई क्रैम नहीं किया हुआ है, केवल एक बात का ध्यान रखा है कि उनके मॉलिक्यूलर मास में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, उनमें पोलरिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, तब वो सॉल्यूशन, और ये भी तब नियर टू द आइडियल बिहेवियर शो करेंगे जब उनकी कंसंट्रेशन डाइल्यूट होगी। कंसंट्रेशन अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी सोल्यूट की सॉल्यूशन में, तो ये सॉल्यूशन भी आइडियल बिहेवियर शो नहीं करेंगे। These solution may behave near to the ideal behavior only when the concentration is very low, solutions are very dilute। तो ये मैंने आपको बताया आइडियल सॉल्यूशन के बारे में। उनके लिए ग्राफ इस प्रकार आएगा कि वो स्ट्रेट लाइन आएगा। कल हमने रूट्स लॉ को ओबे करते वक्त ये बात बताई थी कि जो सॉल्यूशन रूट्स लॉ को ओबे करेंगे उनका स्ट्रेट लाइन में ग्राफ आएगा बिटवीन मोल फ्रैक्शन एंड वेपर प्रेशर। तो ये मैंने तैयार किया है ग्राफ आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब मैं चलता हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। नंबर 1, उनमें क्या क्या डिफरेंस हो जाएंगे, नॉन आइडियल सॉल्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। मस्ट नॉट ओबे द रूट्स लॉ, दीज आर द नॉन आइडियल सॉल्यूशन। डेल्टा एच मिक्सिंग मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0, आइदर इट शुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव। Delta V mixing must not be equal to 0, either it should increase or decrease. Intermolecular force of attraction A and A, B and B, A and B must not be equal. If it is so, the solution is said to be नॉन आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मैंने पिछले केस में कहा था कि 50 सेंटीमीटर क्यूब सोल्यूट को अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब में मिलाया जाता है सॉल्वेंट के, तो टोटल वॉल्यूम 150 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं, या तो 151 होगा या 149 होगा। दोनों ही कंडीशंस में डेल्टा वी 0 नहीं है, या तो +1 है या -1 है। इसका मतलब ये हो गया कि ये एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन दो प्रकार के होते हैं, एक तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। ग्राफ से जैसा लग रहा है, पहले मैं पॉजिटिव डेविएशन की बात करता हूं। नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन, शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर से ज़्यादा होता है, ऐसे सॉल्यूशन कहलाते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। पहला पॉइंट तो ये कि उनका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है एक्सपेक्टेड आइडियल बिहेवियर से। रूट्स लॉ को तो ओबे करते ही नहीं है, वो तभी तो नॉन आइडियल है। स्ट्रेट लाइन में उनका ग्राफ नहीं आएगा, बल्कि या तो ऊपर से जाएगा या नीचे से आएगा। यानी वेपर प्रेशर या तो बढ़ जाएगा या घट जाएगा। बढ़ जाएगा तो पॉजिटिव डेविएशन, घट जाएगा तो नेगेटिव डेविएशन। और डेल्टा एच मिक्सिंग, जब सोल्यूट और सोलवेंट को मिलाया जाएगा
तो वो भी पॉजिटिव होगी, माने हीट इज एब्जॉर्ब्ड। डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी यहां वॉल्यूम भी बढ़ेगा। 50 प्लस 100 150 नहीं होगा, 151 152 होगा, यानी बढ़ेगा। और फोर्थ बात, अब वेपर प्रेशर ज़्यादा हो रहा है। ज़्यादा कब होगा? जब ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा, एज कंपेयर टू ए एंड बी एंड बी। ए और बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। अब ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हुआ तभी तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा ना। जब मैंने ए के अंदर बी को मिलाया और बी जो है वो उतना अट्रैक्टेड नहीं है टूवर्ड्स ए, तो वो उम्मीद से ज़्यादा वेपर्स बनाएगा। और जब वो उम्मीद से एक्सपेक्टेड बिहेवियर से ज़्यादा वेपर्स बनाएगा तो उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। ए का भी वेपर प्रेशर उम्मीद से ज़्यादा होगा और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी एक्सपेक्टेड बिहेवियर से ज़्यादा होगा। इसीलिए हमने उसको नाम दिया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब इसका एग्जाम्पल देख सकते हैं हम। मान लीजिएगा हमने इथाइल अल्कोहल में वाटर को ऐड किया है। इथाइल अल्कोहल मेरे लिए मान लीजिएगा सॉल्वेंट है और वाटर जो है वो सोल्यूट है। सपोज करें वो कम मात्रा में, हालांकि एक्वस सॉल्यूशन में तो वाटर ही सॉल्वेंट होते हैं, मीन्स वो मात्रा के हिसाब से कहूँ तो इथाइल अल्कोहल एंड वाटर आर मिक्स टुगेदर। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स में आपस में इंटेंस हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, लेकिन इथाइल अल्कोहल के बीच में आने से वाटर उतने हाइड्रोजन बॉन्ड आपस में नहीं बना पाएगा, तो उसके वेपर्स पहले से ज़्यादा बनेंगे। इसी प्रकार से इथाइल अल्कोहल भी आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, लेकिन वाटर के आने की वजह से बीच में वो भी हाइड्रोजन बॉन्ड उतने ज़्यादा नहीं बना पाएगा। आप जानते हैं वाटर के मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में जब एग्जिस्ट करते हैं तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। मैं अल्कोहल का एग्जांपल ले रहा हूँ। हाइड्रोजन पर पॉजिटिव, ऑक्सीजन पर नेगेटिव हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, लेकिन बीच में वाटर आ गया तो वाटर के मॉलिक्यूल्स और अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में उतना स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाएगा, तो इनके वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बिहेवियर से ज़्यादा आ जाएगा। मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ। तो ये मतलब एक कैसा सॉल्यूशन है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। एक एग्जांपल और लेते हैं। एसीटोन CH3 C डबल बॉन्ड हो CH3 प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। अब एसीटोन के अंदर पोलरिटी है, तो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स डाइपोल इंटरेक्शन होगा, लेकिन कार्बन डाइसल्फाइड एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, उसमें किसी प्रकार की पोलरिटी नहीं है, तो इनके बीच में आपस में उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा जितना एसीटोन और एसीटोन के बीच में होगा। तो एसीटोन के अंदर कार्बन डाइसल्फाइड मिलाने से जो एसीटोन के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पोलरिटी की वजह से वो कम हो जाएगा, तो वेपर्स पहले से ज़्यादा बनेंगे। तो ये नॉन आइडियल सॉल्यूशन किस तरह का कहलाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। अब बात आती है नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन की। उसमें वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कम होगा। डेल्टा H मिक्सिंग भी नेगेटिव होगी, हीट इवॉल्व होगी सॉल्यूशन के बनाते वक्त। डेल्टा V मिक्सिंग भी नेगेटिव हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा, और इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी A और B के बीच में ज़्यादा हो जाएगा। यानी सोल्यूट और सोलवेंट के पार्टिकल्स आपस में या तो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे या डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनमें ज़्यादा हो जाएगा। तो उससे क्या होगा? ए और बी के इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के ज़्यादा होने से क्या होगा कि वो वेपर्स पहले से कम बनाएंगे। जब वो वेपर्स पहले से एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कम बनाएंगे तो उनका वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा, और वेपर प्रेशर अगर कम हो गया तो उस सॉल्यूशन को हम नाम देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन के।
अगर मैं एसीटोन के अंदर एनिलीन को मिक्स कर देता हूं, NH2 बेंजीन। अब एनिलीन और एसीटोन का ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। पहले डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, लेकिन अब एनिलीन और एसीटोन के बीच में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने से क्या होगा, उनके वेपर्स पहले से कम बनेंगे, तो वेपर प्रेशर पहले से एक्सपेक्टेड बिहेवियर से कम हो जाएगा, इसलिए वो नेगेटिव डेविएशन का एक एग्जाम्पल है। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल भी क्लासिफाई कर सकते हैं, उनको क्रैम करने की बजाय कि कौन सा सॉल्यूशन आइडियल है, कौन सा नॉन आइडियल है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन है, और कौन सा नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन है। इसमें एक चीज़ और आती है, व्हाट डू यू मीन बाय एजियोट्रॉप्स और कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। व्हाट इज azeotropic mixture, or it may also be known as constant boiling mixture, or generally it may also be known as azeotropes. They are the mixtures of the liquid but boils like a pure liquid, boils like a pure liquid. अब मैंने क्या बोला है, अभी थोड़ा ध्यान दे मेरे शब्दों पर, मैंने क्या बोला है, मिक्सचर्स ऑफ द लिक्विड मीन्स दे आर हैविंग मोर देन वन कंपोनेंट, टू कंपोनेंट एट लीस्ट, मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड्स बट बॉयल्स लाइक ए प्योर लिक्विड। व्हाट डज इट मीन्स बॉयल्स लाइक ए प्योर लिक्विड? अगर मैं ए और बी को यहां ऐड करता हूं, सॉल्यूशन बनाता हूं, तो यहां पर वेपर फेज में वेपर्स बनेंगे ए के भी और बी के भी। क्या आप गारंटी ले सकते हैं कि जिस कंपोजिशन में उनको यहां पर रखा गया है लिक्विड फेज में, ये उनका लिक्विड फेज है, ये उनका वेपर फेज है, जिस कंपोजिशन में वो लिक्विड फेज में है, क्या उसी कंपोजिशन में वो वेपर्स बनाएंगे? अगर ऐसा हो रहा है, इट मीन्स ए हैज नथिंग टू डू विद बी। सपोज करिए ए की कंपोजिशन 60% है, बी की कंपोजिशन 40% है, और वेपर फेज में भी उनकी कंपोजिशन वही है, ए 60% है और बी 40% है, तो उनमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा। और अगर उनमें इक्विलिब्रियम आ गया तो कॉन्स्टेंटली वो बॉयल होते रहेंगे। तो मैं ये कह सकता हूं दे आर बॉइलिंग जस्ट लाइक ए प्योर लिक्विड, दे आर डिस्टिल, दे आर अंडरगोइंग डिस्टिलेशन जस्ट लाइक ए प्योर लिक्विड, दो दे आर द मिक्सचर्स ऑफ द लिक्विड। ऐसे मिक्सचर को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर कहते हैं। ऐसे मिक्सचर को क्या कहते हैं? कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। ये दो तरह के होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होगा वही एजियोट्रोपिक मिक्सचर बनाएगा, आइडियल सॉल्यूशन कभी नहीं बना सकता। अब जो आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन है उसकी वह कंपोजिशन जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है, वो कंपोजिशन कौन सी है मेरे ग्राफ में? ये वाली कंपोजिशन है। जिसका वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा है उसका बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होगा। तो ऐसी कंपोजिशन को कहते हैं मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। इसका मतलब अगर आपसे कोई पूछ ले मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स कौन बनाता है, तो आप कहेंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। और ऐसी कंपोजिशन जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम है, ये वाली कंपोजिशन जिसका वेपर प्रेशर सबसे कम है उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि बॉयल होने के लिए वेपर प्रेशर को किसके बराबर होना होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर। तो उसको बहुत ज़्यादा हीट करना पड़ेगा हमें, और जिसका वेपर प्रेशर पहले से बढ़ा हुआ है वेपर प्रेशर तक जाने के लिए हमें हल्का सा ही गर्म करना पड़ेगा, इसलिए जल्दी बॉयल हो जाएंगे मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। जबकि नेगेटिव डेविएशन वाले सोल्यूशन को वेपर प्रेशर जिनका पहले से घटा हुआ है
आइडियल बिहेवियर के एक्सपेक्टेड वैल्यू से भी कम है, तो उनको हमें गर्म ज़्यादा करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ले जाने के लिए। ऐसे सोल्यूशन एजोट्रोप्स को मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कहते हैं। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कौन बनाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन, जबकि आपका मैक्सिमम मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स कौन बनाएगा? नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन। मैं एक एग्जांपल देता हूं, 95.4% इथाइल एल्कोहल and 4.6% of water, इस कंपोजिशन में जब इन दोनों को मिलाया जाता है, विच इज ऑल्सो नोन एज रेक्टिफाइड स्प्रिट, इज नोन एज एजोट्रोप, इज एन एग्जाम्पल ऑफ रादर देन एजोट्रोप, constant boiling mixture. That's why this mixture cannot be separated by using fractional distillation, क्योंकि अगर हम इस डिस्टिलेशन को गर्म करेंगे तो जिस कंपोजिशन में ये लिक्विड फेज में है उसी कंपोजिशन में वेपर्स भी बनाएंगे, तो इनको फर्दर सेपरेट प्योरीफाई नहीं किया जा सकता। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इथाइल एल्कोहल एंड वाटर कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि एल्कोहल और वाटर जब भी आप गर्म करेंगे तो इस कंपोजिशन पे आकर के वो इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। उसके ज़्यादा प्योर एल्कोहल को किया ही नहीं जा सकता, वाटर की इतनी अमाउंट उसमें बनी रहेगी, क्योंकि वो उसके बाद एजोट्रोपिक मिक्सचर बन जाता है। और ये किस तरह का एजोट्रोपिक मिक्सचर बनेगा? क्योंकि इथाइल एल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन एक पॉजिटिव डेविएशन का सॉल्यूशन है, मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो पॉजिटिव डेविएशन का जो सॉल्यूशन है वो कैसा एजोट्रोप्स बनाएगा? मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रोप्स। इस तरह की बातें आपको सोच समझ करके आंसर देनी है। आज के लिए इतना ही, और कल से हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। थैंक यू।